ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 15th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी करांगे रिविजन। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, जो असीं अक्सर ही अपने आले दुआले लोगों को इस तरह दीयां गल्लां करते हुए सुनिया होवेगा कि अज मीह पवेगा या अज मीह बिल्कुल नहीं पवेगा, अज किहड़ी टीम मैच जितेगी, किस दे जितण दे चांसिस ज़्यादा ने। सो ये सारियां गल्लां तुसीं लोकां तो सुनिया होणगियां या फिर तुसीं शायद किसी दिन बदल देख के अपने फ्रेंड दे नाल भी डिस्कस किया हो या अपने घर दे नाल डिस्कस किया हो कि अज मीह पवेगा या मीह पैण दे काफ़ी ज़्यादा चांसिस ने। उत्थे आपां गलबात दे विच संभावना दा ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਖਿੱਚਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਸਿੰਗ ਅ ਕੋਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਲਿੰਗ ਅ ਡਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ कार्ड्स ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਲ ਯਾਨੀ ਚਿੱਤ ਤੇ ਪੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਮਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਇਵੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ over total number of outcomes, total number of outcomes। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਊਟਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम, क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁੱਲ परिणाम ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 2, ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਦੀ 2, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 1, ਜੇਕਰ ਟੇਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ 1। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ 0, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ यानी कि असंभव घटना। असंभव घटना की जिहड़ी संभावना हुंदी है वो हुंदी है अपने कोल 0। इसकी कोई एग्जाम्पल देखते हैं आपां। सुपोज करो आपां एक पासा सुटदे हां, एक पासा सुटिया जांदा है, यानी कि डाई रोल किया आपां, तां उस दे उत्ते आपां गल करिए कि जिहड़ी संख्या है वो 7 आ जाए। हाँ जी, हुण अपने कोल पता है कि पासे दे उत्ते जिहड़ियां संख्यावां ने वो 1 तो लैके 6 तक हुंदियां ने, ते जेकर आपां चाहुंदे हां कि संख्या 7 मिले, संख्या 7 तां आ नहीं सकदी, तां इस तरह की जिहड़ी घटना होएगी वो एक असंभव घटना यानी कि इंपॉसिबल इवेंट होएगी, ते उसकी संभावना होएगी अपने कोल 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि अनुकूल नतीजे कितने होणगे, क्योंकि पासे दे उत्ते 7 तो है नहीं, तो इहदा मतलब अनुकूल नतीजे 0 होणगे, ते कुल नतीजे हुंदे ने 6, ते कैलकुलेट करके अपने को आंसर आएगा इस केस दे विच 0। हाँ जी, अगे गल करते हैं आपां श्योर इवेंट दी। श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना। जिहड़ी घटना दा होना निश्चित है या पक्का है उन्होंने आपां कहने आ श्योर इवेंट या निश्चित घटना, ते इसकी संभावना हुंदी है अपने कोल 1। सो इसकी संभावना हुंदी है 1, ते इसकी एग्जाम्पल जेकर आपां लैनी चाहिए तो आपां पासा सुट्टण ते ही संख्या 7 तो घट मिल जाए आपां नूं, इस तरह की जिहड़ी अपने कोल घटना होएगी उसकी संभावना होएगी 1। क्यों? किवें? हाँ जी, आप चाहते हैं कि संख्या 7 तो घट मिले आपां तो अपने कोल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो कुल भी होंगे ने 6, तो कटिंग करके अपने कोल आ जाएगा 1। सो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होंगी है 1, इहनूं बोलते हैं आपां निश्चित घटना। हाँ जी, अगे गल करिए कि किसी एक्सपैरीमेंट नूं परफॉर्म करन ते किसी घटना दे होण ते किसी घटना दे ना होण दी संभावना दा टोटल कितना हुंदा है अपने कोल। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट, यानी कि किसी घटना की संभावना ते उस घटना दे घटना नहीं या ई नहीं लिख सकते आपां, इत्थे इन्हां दा जोड़ हुंदा है हमेशा 1 दे बराबर। सो इस दे बेस ते जिहड़ा क्वेश्चन आंदा है तुहानूं की दिता हुंदा है, इन्हां दोनों चों किसी एक दी वैल्यू दित्ती हुंदी है, दूजे दी पुछी हुंदी है। सपोज करो किसी घटना दे वापरन की संभावना देती ते उसदे ना वापरन की संभावना तुहाडे कोलों पुछी गई है, तो तुसीं की करना है, उसदे ना वापरन की संभावना पता करन दे लई 1 दे विचों उसदे वापरन की संभावना नूं घटा देंगे, तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो आपां नूं मिल जाएगा P नॉट ई, ते जेकर P नॉट ई की वैल्यू दी है तो उन्होंने घटा देंगे 1 दे विचों, तो P ई की वैल्यू आपां नूं मिल जाएगी। हाँ जी, आप स्टार्टिंग च गल की सी कि जदों आपां कोई एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जिहड़े नतीजे हुंदे ने उन्हां नूं उस दियां मुढ़लियां घटनावां कहा जाता है, यानी कि एलीमेंटरी इवेंट्स बोलिया जाता है। उन्हां दे नाल रिलेटेड अपने कोल एक फैक्ट है कि किसी प्रयोग दे नाल संबंधित मुढ़लियां घटनावां दियां संभावनावां दा जोड़ हमेशा 1 हुंदा है, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज of elementary events
ऑफ एन एक्सपेरीमेंट इज इक्वल टू 1। सो उन्हां दा जोड़ एक हुंदा है। हाँ जी, इसनूं आपां चैक भी कर सकते हैं। जिवें आपां कोई सिक्का उछालिया तां हैड दे आने की संभावना की हो जाएगी अपने कोल अनुकूल परिणाम 1 टोटल 2। इस तरह टेल प्राप्त करने की संभावना भी की हो जाएगी अपने कोल 1/2। तो जेकर इन्हां दा आपां जोड़ कर लीए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड ते प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो अपने कोल आ जाएगा हाफ प्लस हाफ, उत्थों अपने कोल बन जाएगा 1। सो इनू आपां इह चैक भी कर लिया इत्थे। स्टूडेंट्स हुण आने आप एक्सरसाइज 15.1 ते उहदा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है उसका पार्ट घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना, उहदा टोटल पूछा होया अपने कोल ते इह हुंदा अपने कोल 1 दे बराबर, जिवें आपां पहलां डिस्कस कीता ही सी। सैकेंड है अपने कोल उस घटना की संभावना जो वापर नहीं सकती। हाँ जी, जिहड़ी घटना वापर नहीं सकती उसकी संभावना हुंदी है 0। तो अजिही घटना डैश कहलाती है। इसनूं बोलते हैं आपां इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, थर्ड की गल करते हैं। थर्ड आंदा अपने कोल उस घटना की संभावना जिसका वापरना निश्चित है। हाँ जी, उसकी संभावना हुंदी है 1। तो ऐसी घटना नूं आपां बोलते हैं निश्चित घटना, यानी कि श्योर इवेंट। अगे फोर्थ पार्ट ते आने आ। फोर्थ पार्ट है अपने कोल किसी प्रयोग दीयां सारियां आरंभिक घटनावां दीयां संभावनावां दा जोड़ डैश है। हाँ जी, आपां हुणे गल कीती सी ते ओह जोड़ हुंदा अपने कोल 1 दे बराबर। फिफ्थ है किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी या उसके बराबर हुंदी है। हाँ जी, किसी घटना की संभावना 0 तो वड्डी या इसके बराबर हुंदी है ते डैश तो छोटी या उसके बराबर हुंदी है। हाँ जी, घटना की संभावना 1 तो छोटी या उसके बराबर हो सकती है। सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल कुछ प्रयोग ने दिते हुए उन्हां चों पुछया होया उन्होंने किहड़े समसंभावी ने, यानी कि इक्वली लाइकली। समसंभावी मीनस इक्वली लाइकली, यानी कि जिन्हां दे वापरन की संभावना बराबर होए। एक ड्राइवर कार चलाने का यत्न करता है, कार चलनी शुरू हो जाती है या कार चलनी शुरू नहीं होंदी, मीनस कार स्टार्ट हो जाती है या नहीं होंदी। हाँ जी, यह किसी भी तरह समसंभावी यानी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि जनरली अपने कोल यही हुंदा है कि जिहड़ी कार है आपां स्टार्ट करिए या कोई ड्राइवर स्टार्ट करे तो स्टार्ट हो जाती है। कदे उहदे विच कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उस केस दे विच स्टार्ट नहीं होएगी। सो ज़्यादातर केसेस दे विच अपने कोल कार स्टार्ट हो जाती है। सो इसका आंसर है नहीं, नो। सो इसकी एक्सप्लेनेशन आपां जिवें डिस्कस कीती है उवें तुसीं इसका आंसर दे सकते हो इन केस क्वेश्चन तुहानूं पुछया जांदा तां। नैक्सट है एक खिडारी बास्केटबाल नूं बास्केट विच पाउण दा यतन करदी है, वो बास्केट विच गेंद पा सकती है या नहीं पा सकती। हाँ जी, ये भी अपने कोल समसंभावी नहीं है, क्योंकि जिहड़ा प्लेयर है जेकर तो वह ट्रेंड है तो वह बास्केट काफ़ी ज़्यादा बार पा लेगा या उसकी बॉल बास्केट चल जाएगी। जेकर वो ट्रेंड नहीं है, नवा प्लेयर है, तो उसके बास्केट दे विच बॉल नूं पाउण दे चांसिस घट ने, मीनस ज़्यादा बार बास्केट च बॉल नहीं पैंदी ते ट्रेंड प्लेयर के द्वारा ज़्यादा बार वो बास्केट च पै जाती है। सो ये समसंभावी किसी तरह नहीं है। सो इसका भी नो आएगा, यानी कि नहीं। थर्ड की गल करिए इसे दे तो वह है अपने कोल एक सच या झूठ प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अपने कोल एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिहदे 2 ऑप्शंस ने, ईदर ट्रू और फॉल्स। सो आप अनुमान लगा रहे हैं, पहला तो नहीं पता कि क्वेश्चन का किहड़ा आंसर है। सो जो अनुमान लगावांगे तो आप सही आंसर भी लगा सकते हैं अनुमान दे विच, गलत भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपन उसके बारे पता ही नहीं। सो इस केस दे विच ये दोनों समसंभावी होणगे। हाँ जी, इसका आएगा यस, यानी कि हाँ तो एक्सप्लेन इन तुसी इस तरह कर सकते हो जिवें आपां डिस्कस किया। फोर्थ है अपने कोल एक बच्चे का जन्म होंदा है, वो लड़का है या लड़की है। हाँ जी, ये भी इक्वली लाइकली होणगे, क्योंकि जो बच्चे का बर्थ होंदा है तो आपां नूं पहलां तो नहीं पता होंदा कि लड़का होएगा या लड़की होएगी। सो ये भी समसंभावी ने अपने कोल। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है अपने कोल एक गेम स्टार्ट करनी है फुटबॉल की, उस दे विच किहड़ी टीम नूं बॉल मिलनी चाहिए है, उसका फैसला करन दे लई आपां सिक्का उछालते हैं, यानी कॉइन टॉस करते हैं। इनू सही क्यों मन्निया जाता है? हाँ जी, जो आप सिक्का उछालते हैं तो अपने कोल हैड ते टेल दे आने के चांसिस बराबर बराबर होंगे ने। सो जिहड़ी टीम टॉस जितेगी
उसनूं बॉल मिल जाएगी। सो इस तरह ये बिल्कुल सही तरीका है डिसाइड करन दा कि किहड़ी टीम नूं बॉल मिलेगी, क्योंकि जिहड़े इसदे नतीजे ने सिक्का उछालण ते ओह समसंभावी ने। यस, बिकॉज outcomes are equally likely। हाँ, क्योंकि इसदे नतीजे समसंभावी ਹਨ। क्योंकि नतीजे समसंभावी ने, सो यह सही तरीका मन्निया जाता है। अगे फोर्थ क्वेश्चन है अपने कोल, आपां नूं कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दित्तियां हुई ने ते पुछया होया कि इन्हां चों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट ते आम ही यह पेपर दे विच देखण नूं मिलदा है शॉर्ट क्वेश्चनस दे विच। सो संभावनावां दित्तियां हुई ने आपां नूं 2/3 -1.5 15% ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.7। ओके, आप सारिਆਂ ਨੂੰ डिस्कस करते हैं ताकि जेकर इन्हां तो बिना कोई होर तरह का क्वेश्चन भी आ जाए वैल्यूज़ के नाल, नवीं वैल्यूज़ के नाल, तो तुसीं उसनूं भी कर पाओ। हाँ जी, अपने कोल इस च है 2/3। जदों भी आपां नूं एक फ्रैक्शन दिता होएगा संभावना ते अंश होएगा छोटा, अंश यानी न्यूमीरेटर होएगा छोटा डेनोमीनेटर तो, या फिर वध तो वध उहदे इक्वल हो जाए। वो मीनस अंश छोटा होएगा हर तो, या अंश हर दे बराबर होवे, यानी 1/1 या 2/2 12/12 15/12 उहदी कटिंग करके तुहानूं 1 मिल जाएगा। तो आपां नूं पता है कि 1 तां किसी घटना की संभावना हो सकती है। सो इस तरह के केस दे विच अंश या तो हर तो छोटा होवे या होवे उहदे बराबर, तां उस तरह की संभावना किसी घटना की हो सकती है। इस केस दे विच अंश देखो छोटा है, आपां गल कीती है छोटा या बराबर होना चाहिए हर दे। सो ये संभावना हो सकती है। उस तो बाद माइनस यानी 0 तो छोटी वैल्यू होगी, तो 0 तो छोटी कदे भी किसी संभावना की वैल्यू नहीं आती, इसलिए ये किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। अगे गल करते हैं परसेंटेज वाला पार्ट जोड़ा होंदा है, आपां नूं पता है परसेंट हटा के कितना मिलता होंदा है, नीचे लग जाता है 100। जेकर इनू भी तुसीं अगे सोल्व करोगे तो 0.15 बनेगा, जो कि 0 ते 1 दे विच आंदा है। सो ये हो सकती है हमेशा किसी घटना की संभावना। सो जदों भी परसेंटेज दी होगी 100 तो ज़्यादा परसेंट नहीं होना चाहिए। मान लो आ गया 101%, ये किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि जदों इसका परसेंटेज हटावांगे तो आपां नूं मिलेगा 101/100। हाँ जी, अंश हो गया वड्डा, अपने को जी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उस केस दे विच वो संभावना नहीं हो सकती। पर जदों इसकी वैल्यू अपने कोल 100 तो ना वधे उदों संभावना हो सकती है। हाँ जी, अगे है 0.7 तो 0.7 तो 0 ते 1 दे विचकार है। सो इस तरह की जदों कदे भी वैल्यू दी होएगी तो उस केस दे विच भी संभावना की वैल्यू वो बन सकती है। स्टूडेंट्स हुण अपने कोल 5th क्वेश्चन दे विच PE की वैल्यू दी हुई है, PE नहीं की वैल्यू पूछी हुई है। आपां नूं पता है PE नहीं आपां किवें निकाल सकते हैं, 1 दे विच्चों PE नूं सबट्रैक्ट करके। सो 1 दे विच्चों आ वैल्यू सबट्रैक्ट करांगे 0.05। हाँ जी, इनू सबट्रैक्ट करने के लिए पहले इन्होंने लाइक डेसीमल च कन्वर्ट करना पएगा, यानी 1 दे पिछे 1 दे विच पॉइंट नहीं है तो वह पॉइंट पिछे हुंदा है, अपने कोल पिछे लगाना हुंदा है पॉइंट। उस तो बाद देखना कि दूजी जिहड़ी है वैल्यू उहदे विच पॉइंट तो बाद किन्ने अंक ने, उन्नियां जीरोज इहदे पिछे लगा लेनियां ने। हुण इहदे विचों 0.05 नूं घटाना है, पॉइंट हेठां पॉइंट आना चाहिए सबट्रैक्ट करन टाइम। सो इत्थों इनू सबट्रैक्ट करांगे तो इत्थे अपने कोल 10 बन जाएगा, इत्थे रह जाएगा 9, इत्थे 0, 10 चों 5 घटा के 5, 9 चों 0 घटाए 9, इत्थे 0 चों 0 घटा के 0.95 अपने कोल आंसर आ जाएगा इसका। अगे देखते हैं अपने कोल है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन दे विच की है अपने कोल, हाँ जी, एक कोई थैला है उहदे विच केवल निंबू की महक वालियां यानी कि लैमन की फ्रैगरेंस वालियां टॉफीज़ ने। थैले दे विचों एक गोली बाहर कढ़दी है मालिनी, तो संभावना की है कि कढ़ी हुई गोली संतरे की महक वाली है। हाँ जी, उन्हें आपां नूं कहा है कि निंबू की महक वालियां गोलियां ने, लैमन फ्रैगरेंस वालियां ने, तो संतरे वाली किवें हो सकती है उहदे विच। सो ये तो है अपने कोल असंभव घटना, संभव घटना बन गई ना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल ईवेंट। तो इसकी संभावना की होंगी है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी होएगी अपने कोल 0। अगे नैक्सट की गल करिए, निंबू की महक वाली है, क्योंकि उसदे सारिया ही गोलियां निंबू की महक वाली, जिहड़ी मर्जी कढ़ लो निंबू की महक वाली ही निकलूगी, यानी कि अपने कोल ये होगी निश्चित घटना।
तो निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने कोल हुंदी है 1, सो इसकी संभावना हो जाएगी 1। अगे 7वां क्वेश्चन देखिए तो उसदे विच है अपने कोल दिता होया कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह विचों 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की संभावना, यानी कि बर्थडे सेम डे ना होवे, प्रोबेबिलिटी है दी हुई आपां जन्मदिन एक ही दिन नहीं आते बच्चों के उन्होंने दोनों के, तो उसकी संभावना है अपने को 0.992। हाँ जी, आपको पूछा होया है कि उन्होंने दोनों के जन्मदिन इक्को दिन आने, उसकी की संभावना होएगी? जन्मदिन एक ही दिन। हाँ जी, आपको पता है कि इस तरह के केस दे विच आपां 1 दे विचों उसकी संभावना घटा सकते हैं। सो 1 दे विचों 0.992 सबट्रैक्ट करांगे। सो इसी तरह ये जिवें आपां 1 दे पिछे पॉइंट लगा के जीरोज लईआं सी, हुण इहदे विच आपां नूं 3 जीरोज लैणियां पैणगीआं इहदे पिछे। सो 0.992 नूं सबट्रैक्ट करांगे। सो इत्थों कैरी करेगा इत्थे 0, इत्थे 10, फिर इत्थे 9, इत्थे 10, इत्थे 10 तो बाद इत्थे 9, फिर इत्थे 10, 10 चो 2 सबट्रैक्ट किते 8, 9 चो 9 सबट्रैक्ट किते 0, 9 चो 9 सबट्रैक्ट किते 0, 0 चो 0 सबट्रैक्ट किते 0, पॉइंट थले पॉइंट लग गया। सो 0.008। सो अपने कोल जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जिहड़े उन्हां दे बर्थडे ने वो सेम डे आण, इक्को दिन लाई करना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने कोल आ जाएगी आ वाली, ये बन जाएगा अपने कोल आंसर। सो 8th क्वेश्चन है अगे अपने कोल, थैले विच 3 लाल 5 कालियां गेंदां ने, रैड ने 3, ब्लैक ने 5, तो टोटल अपने कोल कितनियां हो गई इत्थों 8। फिर अगे की कहंदा है, अचानक एक बॉल है जिहड़ी बाहर निकाली गई है, उसकी संभावना पता करनी है कि वह लाल होवे। पी रैड बॉल या लाल गेंद लिख सकते हैं इत्थे आपां। हाँ जी, सामने लिखांगे आपां संभावना का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन दे विच संभावना का फॉर्मूला एक बार जरूर लिखा होवे, जो उहदे जिन्ने मर्जी पार्ट ने फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना, उस तो बाद तुसीं पार्ट्स नूं डायरैक्टली सॉल्व कर सकते हो। सो इत्थे फॉर्मूला लिख के अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स लाल दे लई किन्ने होणगे 3, सो 3 बटे टोटल आउटकम्स, टोटल इन्हां दा आपां कर चुके हैं तो वह आ रहा अपने कोल 8। सो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। अगे उन्हें पूछा कि लाल ना होवे बॉल लाल ना होवे, यानी कि बॉल 2 ही तरह दी बॉल्स ने, लाल वालियां नूं छड्ड दो तो ब्लैक वालियां दे, फिर बाकी दियां देख लो कितनियां ने अपने कोल 5। सो इसका दूसरे पार्ट का जिहड़ा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/8, यानी फेवरेबल ओवर टोटल करके। अगे देखते हैं आप 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक डब्बे विच 5 लाल बंटे। हाँ जी, रैड ने अपने कोल 5, लाल यानी कि 5, चिट्टे ने 8, वाइट ने 8, तो उस तो बाद है 4 हरे। सो ग्रीन ने अपने कोल 4, तो टोटल कर लेंगे इन्हां दा, टोटल आ जाएगा 5, 8, 13, 13 ते 4 17, टोटल हो गए 17। हाँ जी, फिर उन्हें कहा भी एक अचानक बंटा बाहर कढ़िया गया, उसके विचों डब्बे दे विचों उसकी संभावना पता करनी है लाल। ओके, पहला पार्ट है अपने कोल पी रैड मार्बल। ओके, यानी कि लाल बंटा। ओके, फॉर्मूला लिख लांगे एक बार। लाल बंटे किन्ने ने अपने कोल फेवरेबल बन जाएंगे वो अपने 5, तो टोटल इन्हों का टोटल कर चुके आप 17। सो ये बन जाएगा अपने कोल इसका आंसर। फिर अगे गल करिए सैकेंड पार्ट की, तो सैकेंड पार्ट च उन्हें पूछा कि वाइट मार्बल यानी कि चिट्टा बंटा। सो पी वाइट मार्बल, यानी उरे लिखांगे आप चिट्टा बंटा। सो चिट्टे किन्ने ने 8, वो बन गए अपने फेवरेबल यानी अनुकूल परिणाम, तो टोटल ने अपने कोल 17 ही। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड च उन्हें पूछा होया है कि हरा नहीं है, हरा नहीं। सो ग्रीन नहीं चाहिए आपां, यानी कि आ चाहिए ने, आपां इन्हां दा टोटल कर लांगे 13 बन जाएगा। सो इस केस दे विच लिखांगे पी ग्रीन नोट ग्रीन। सो फेवरेबल 13, ग्रीन नूं छड्ड के ओवर तो 17 ही आएगा। इस तरह अपने को इसका आंसर बन जाएगा। नैक्सट है अपने को 10th क्वेश्चन। हाँ जी, एक कोई पिगी बैंक है, वो 50 पैसे के सिक्के ने, किन्ने ने वो ने 100। हाँ जी, 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, वो ने 100
उस तो बाद आते हैं अपने कोल 1 रुपए के 50 सिक्के ने, ₹1 कॉइनस ਉਹ ने अपने कोल 50, यानी 50 पैसे वाले सिक्के 100, 1 रुपए वाले सिक्के 50। उस तो बाद है अपने कोल 2 रुपए वाले सिक्के 20 ने, ₹2 कॉइनस 20 ਤੇ ₹5 कॉइनस यानी 5 रुपए वाले सिक्के किन्ने दिते हुए ने आपां नूं, ਉਹ दिते हुए ने 10 यानी कि 10। सो इन्हों टोटल कर लांगे पहला आपां, टोटल आ रहे हैं 150, उस तो बाद 30 आ हो गए, 180 हो गए अपने को टोटल कॉइनस। हाँ जी, और फिर कहता है कि कोई सिक्का अचानक बाहर कढ़िया गया है तो उसकी संभावना पता करनी है कि वह 50 पैसे का सिक्का होएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, यानी कि उरे संभावना लिख के उरे पी ही लिख लेना, ये लिख लेना 50 पैसे का सिक्का। हाँ जी, सामने फॉर्मूला लिख के उस तो बाद 50 पैसे के किन्ने सिक्के ने 100, तो अपने फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिणाम हो गए 100 बटे टोटल ने 180। हाँ जी, 0 ਨਾਲ 0 कट्टी गई, उस तो बाद 2 के टेबल च कटिंग 5 ते इत्थे 9 दूनी 18। सो 5/9 आंसर बन जाएगा इस पार्ट का। फिर वो कहता है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होएगा, पी नोट आ ₹5 कॉइन, यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं, 5 रुपए का सिक्का आपां नूं नहीं चाहिदा। सो उस तो बिना अपने कोल किन्ने हो जाएंगे 10 ने, 180 टोटल है, 10 छड्ड के अपने कोल आ जाएंगे 170। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इस केस 170 बटे टोटल 180, 0 ਨਾਲ 0 कट्टी गई, 117 बटे 18 इसका आंसर बन जाएगा अपने कोल। स्टूडेंट्स अगे आने आप 11th क्वेश्चन ते गोपी अपने जल जीव कुंड, हाँ जी एक्वेरियम है एक जिहदे मच्छियां रखिया जांदियां ने जो कच्च का बनया हुंदा है। आपां देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स दे विच जां लोकां ने किते किते घरे भी रखे हुंदे ने उस तरह के। हाँ जी, दुकान तो मच्छियां खरीदी आ, उहदे विच पाउण दे लई गोपी दुकानदार एक टैंकी जिस विच 5 नर मच्छियां ने, नर मच्छियां ने 5 यानी कि मेल फिश ਉਹਨੇ 5 अपने कोल, ते मादा मच्छियां ने 8, मादा मच्छियां 8 ने यानी कि फीमेल फिश। उन्हां दी काउंट है अपने कोल 8। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक मच्छी अचानक वो बाहर कढ़दा है, तो संभावना पता करनी है कि वह नर मच्छी है। हाँ जी, ये टोटल हो गई अपने कोल 13। प्रोबेबिलिटी आपां निकालनी है मेल फिश दी, मेल फिश यानी कि नर मच्छी, उसकी संभावना पता करनी है। हाँ जी, फॉर्मूला लिखांगे, फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे नतीजों की कुल संख्या या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उस तो बाद मेल फिशिज किन्नियां ने अपने कोल 5, तो ये अपने कोल फेवरेबल हो जाएंगे, तो टोटल किन्नियां ने 13। सो 5/13 इसका आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स हुण आ रहे अपने कोल एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। एक गेम है जिहदे विच अपने कोल एक सर्कल है, उहदे विच संख्यावां ने अपने कोल लिखियां होईयां 8 तक। हाँ जी, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक तीर है, इनू कहते घुमाने तो तीर किसी ते तीर किसी नंबर वाल पॉइंट करता है। फिर उन्हें पूछा होया कि जिहड़ा तीर है वो 8 वाल संकेत करेगा, इसकी की संभावना है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट तो 8 वाल संकेत करेगा। हाँ जी, फॉर्मूला लिखण तो बाद अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल नतीजों की संख्या 8 वाल संकेत करेगा। 8 आ रहा है एक बार, तो यदा आंसर आ जाएगा अपने को 1/, यह टोटल ने 8, सो वो आ जाएगा। सैकेंड है एक टांक संख्या वाल संकेत करेगा, एक टांक संख्या यानी कि ओड नंबर टांक, उन्होंने जो है अपने को 1 3 5 ते 7 4 टांक ने। सो 4 अपने को फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो टोटल ने अपने को 8 कटिंग करके 1/2 अपने को आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 तो वड्डी संख्या, 2 तो वड्डियां संख्यावां किन्नियां ने, इन्हां दोनों नूं छड्ड के बाकी दियां 6। सो इस केस दे विच अपने को आंसर आएगा 6/8 कटिंग करके 3/4। सो इत्थे तुसीं लिख सकते हो ब्रैकेट दे विच 2 तो वड्डी संख्या पी दे नाल। उस तो बाद चौथे नंबर ते है अपने को 9 तो छोटी संख्या। हाँ जी, आपां नूं पता है कि सारियां संख्यावां 9 तो छोटियां ही ने क्योंकि 8 तक ने। सो ये तो होगी एक श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 9 तो छोटी प्रोबेबिलिटी
9 तो छोटी संख्या यानी नंबर लैस दैन 9। ओके 8/8 कटिंग करके मिल जाएगा आपां नूं 1 क्योंकि यह एक सी श्योर इवेंट। नैक्सट 13 क्वेश्चन है अपने को एक पासा सुटिया यानी डाई रोल किया है, रोलिंग डाई टाइप का एक्सपैरीमेंट है अपने कोल। हाँ जी, तो एक अभाज संख्या की संभावना पता करनी है आपां पहले पार्ट दे विच। अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हाँ जी आपां नूं पता है जिहड़े पासे दे उत्ते नंबर हुंदे ने ओह हुंदे ने 1 2 3 4 5 6। इन्हां चों प्राइम यानी अभाज किहड़े किहड़े ने 2 3 ते 5, यानी कि फेवरेबल किन्ने हो गए, इन्हां दी गिणती कितनी हुई 1 2 ते 3। सो फेवरेबल 3 बटे टोटल 6 कटिंग करके अपने को आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला लिख लेना पहला। दूजे पार्ट दे विच अपने को आ रहा है 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ। 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 3 4 ਤੇ 5। ਸੋ ਇੱਥੇ P ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। सो अपने को आ जाएगा अगेन 3/6 कटिंग करके आ जाएगा अपने को 1/2। थर्ड पार्ट है हुण अपने कोल एक टांक संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किहड़े किहड़े ने 1 3 ते 5, 3 ने अपने कोल ऑड नंबर। सो P ऑड नंबर ये आ जाएगा अपने कोल 3/6 कटिंग करके अगेन 1/2 आपां नूं आंसर मिल जाएगा। सो तीनों आंसर 1/2 आ रहे हैं इस केस दे विच। हाँ जी, अगे आ रहा है अपने कोल ताश वाला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है जो कार्ड्स के नाल रिलेटेड है। तो ये वाला क्वेश्चन एक अलग वीडियो दे विच सॉल्व किया गया, डिटेल दे विच एक्सप्लेन किया गया सारा कुछ। वो वाली वीडियो तुसीं उपर सुजैसटेड वीडियोज़ दे विच जाके देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन दे विच भी उसका लिंक दे दिता जाएगा, उत्थों तुसीं इहनूं देख लेना है। 15th क्वेश्चन है जिहड़ा अगे अपने कोल। हाँ जी, 15 क्वेश्चन भी ताश के नाल रिलेटेड ही है। सो इस दे लई जिहड़ा 14th क्वेश्चन की वीडियो है उन्होंने देख के तुहानूं काफ़ी हद तक उसका आइडिया लग जाएगा। फिर भी इन्हूं आपां चलो सोल्व कर लेंदे हां। ताश के 5 पत्ते ने, इट दा दिल आ, हाँ जी इट दा 10। उस तो बाद है अपने कोल इट दा ही गुलाम है यानी जिहड़ा जे हुंदा है और गुलाम हुंदा है जैक। उस तो बाद बेगम क्यू, ते उस तो बाद बादशाह यानी किंग, ते यक्का, यक्का हुंदा है अपने कोल ए। इनू पलट के चंगी तरह फेंटिया गया है। ये 5 पत्ते लए तो उन्होंने फेंटिया गया है। फिर इन्हां चों एक पत्ता अचानक बाहर कढ़िया जाता है। इसकी की संभावना है कि एक पत्ता बेगम है। हाँ जी, P बेगम, बेगम यानी कि क्वीन। सो अपने कोल क्वीन किन्नियां सी इहदे विच 1। सो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 1 ते टोटल ने यह 5 पत्ते सी अपने कोल। सो 1/5 आंसर बन जाएगा इस केस दे विच। फिर वो कहता है जेकर बेगम आउंदी है तो इसनूं अलग रख दिता जाता है। मान लो बेगम आ गई, उन्होंने बाहर कढ़ता। हाँ जी, बेगम हुण आपां कढ़ती बाहर। हुण अपने कोल पत्ते रह गए 1 2 3 4, उन्हां च बेगम नहीं है। अते एक होर पत्ता बाहर कढ़िया जाता है। इसकी की संभावना है कि दूजा कढ़िया गया जिहड़ा पत्ता है ओहो होएगा एक यक्का। हाँ जी, हुण जिहड़े अपने कोल पत्ते बचे सी बेगम कढ़ण तो बाद उन्हां च एक यक्का हैगा। सो अनुकूल परिणाम होणगे एक यक्का लिख के इस तरह तुसीं। सो अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल, क्योंकि बेगम कढ़ दी गई है। हुण अपने कोल जिहड़े पत्ते ने कुल 4 रह गए। सो कुल परिणाम के लिए 4 लिखना है, किते 5 ना लिख दिओ, इत्थे यह मिसटेक ना हो जाए तुहाडी, ध्यान रखियो। क्योंकि एक पत्ता बाहर कढ़ता तो उन्होंने घटा देना है टोटल दे विचों। हाँ जी, इसका बी पार्ट अगे पूछता है कि वो जो पत्ता हुण आपां कढ़िया बेगम नूं बाहर कढ़ण तो बाद एक बेगम होवे उसकी संभावना पूछी है। बेगम पहला ही एक सी, वो बाहर कढ़ती, हुण अपने कोल कोई बेगम नहीं। इट मीनस जे बेगम की संभावना पता करांगे तो बेगम तो अपने कोल 0 है, तो कुल पत्ते हुण 4 ने, 0/4 यानी कि 0, क्योंकि यह एक असंभव घटना हो गई सी कि बेगम वाला पत्ता ही नहीं, तो बेगम किवें आ सकती है। सो असंभव घटना की संभावना तां करके 0 आ गई अपने कोल। स्टूडेंट्स हुण अपने कोल आ रहा 16th क्वेश्चन। किसी कारण 12 खराब पेन 132 चंगे पेनां च मिल गए ने। हाँ जी, खराब पेन यानी जिहड़े डिफेक्टिव ने वो ने 12 ते गुड यानी कि चंगे पेन ने अपने कोल 132। तो टोटल हो गए अपने कोल 144। हाँ जी, कहता पेन नूं देख के नहीं पता लग सकता कि किहड़ा सही है किहड़ा खराब है। तो इस मिश्रण विचों एक पेन बाहर अचानक कढ़िया जाता है, एक पेन कढ़ लिया कोई आपां
ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੈਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਪੈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ है। सो P ठीक पेन यानी कि गुड पेन। ओके, फॉर्मूला लिख के उस तो बाद गुड पेन यानी कि चंगे पेन किन्ने सी, ठीक यानी कि 132 बटे टोटल 144। हाँ जी, इसकी कटिंग करांगे 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 132 ਆਂਦਾ 11 ਤੇ 12 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 144 ਆਂਦਾ 12 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਾਰੀ 144 ਹੁੰਦਾ है। सो इसका आंसर आ जाएगा 11/12। हाँ जी, अगे आंदा अपने को 17th क्वेश्चन। 17 के 2 पार्ट ने। पहला पार्ट है टोटल बल्ब दिते हुए ने आपां नूं, टोटल बल्ब्स आर 20। कहंदा उन्हां दे विचों 4 खराब ने, डिफेक्टिव ने 4 यानी कि खराब बल्ब 4 ने। इस समूह विचों एक अचानक कढ़िया जाता है बल्ब, तो संभावना पता करो कि बल्ब खराब होगा। खराब बल्ब की संभावना पूछी हुई है। डिफेक्टिव ने 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब 4 बटे टोटल 20, कटिंग करके आ जाएगा अपने को 1/5। फिर कहता है, हाँ जी, दूजा पार्ट है जिहड़ा इसका, मान लो एक जिहड़ा पहला आपां आह कीता, इहदे विच जिहड़ा बल्ब निकलिया वह खराब नहीं है तो ना ही इसनूं दोबारा बल्बां दे विच मिलाया जाता है, यानी कि बल्ब ठीक सी ते उहनूं बाहर कढ दिता गया। एक ठीक बल्ब बाहर निकल गया। हुण अपने कोल रह गए इत्थे अपने कोल 19 ते बल्ब भी ठीक सीगा, ओह 4 खराब विच ही ने। हुण बाकी बल्बां दे विच्चों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया जांदा, इसकी संभावना कि बल्ब खराब नहीं होवेगा, यानी हुण आपां ठीक बल्ब की संभावना पता करनी है। हाँ जी, टोटल ने 19, उन्हां चों खराब ने हुण 4। इहदा मतलब जिहड़े ठीक ने हुण अपने कोल 19 चों 4 घटा के 15 ठीक ने। सो इहदे विच संभावना आएगी अपने कोल इस केस दे विच 15 बटे टोटल। हुण अपने कोल 19 ने याद रखना, एक बाहर कढ़ता सी ते ओह ठीक ही बाहर कढ़िया सी आपां। सो इसकी संभावना हो जाएगी 15/19 अपने को इस तरह। हाँ जी, अगे आने आप 18th क्वेश्चन दे उत्ते। हाँ जी, एक पेटी है, पेटी दे विच 90 डिस्क ने, 90 प्लेटां ने यानी डिस्क ने। उन्हां दे उत्ते 1 तो 90 तक संख्यावां नंबरस लिखे हुए ने ते एक प्लेट अचानक बाहर कड्ढी जाती है उस दे विचों, तां उहदे उत्ते जिहड़ी संख्या है वो 2 अंकां की संख्या होवे। इसकी संभावना पता करनी है। पहले पार्ट दे विच P 2 अंकां दी संख्या यानी 2 डिजिट नंबर। ओके, 1 तो लैके 90 तक हुण आपां नूं पता होना चाहिए कि किन्नियां 2 अंकां दीयां संख्यावां हुंदियां ने। पहलियां 9 ने जिहड़ियां 1 तो लैके 9 तक ओह 1 अंक दीयां ने, बाकी सारियां ने 2 अंकां दीयां। पहलियां 9 कढ़ दो 90 दे विचों, 90 दे विचों 9 कढ़ांगे तो अपने कोल आ जाणगियां 81। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 81। टोटल तो थल्ले 90 ही आणगे। कटिंग 9 दे टेबल च 90 आया 10 ते 81 आया 9 ते। सो 9/10 आंसर बन जाएगा इस पार्ट का। सैकेंड देखते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या। हुण पूर्ण वर्ग संख्या की हुंदी है? पूर्ण वर्ग संख्या वो हुंदी है जो किसी होर संख्या का वर्ग करे ते मिले, यानी स्क्वेयर करे ते मिले। इनू परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बोलते हैं आपां। ये हुंदियां ने अपने कोल 1 का स्केयर करे तो 1 मिलता है आपां नूं, 2 का स्केयर करे तो मिलता है 4, 3 का स्केयर करे तो 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, उस तो बाद 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, जो कि इस तो टप जाएगा। सो आपां नूं आह चाहिए ने। सो इस केस दे विच अपना एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसकी संभावना, पूर्ण वर्ग संख्या की संभावना उन्होंने आपां नूं पूछी है, तो यह काउंट कर लेने कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9/90 कटिंग करके 1/10 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। ये लिखा जाएगा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। अगे अपने को इसका आंदा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट च पूछा गया है 5 नाल वंडी जाने वाली एक संख्या। 5 ते वंडी जाने वाली संख्या हाँ जी किहड़ियां हो सकदियां ने, 5 10 15 20, इस तरह करते करते कित्थे तक जाना है आपां 90 तक। इस तरह सारियां नूं गिण सकते हो, या फिर आपां नूं पता है 18 5 90। सो 18 होणगियां अपने कोल ऐसियां संख्यावां, जे इन्हां नूं गिण भी लओगे तो भी 18 ही आणगियां अपने कोल उत्थों। सो P 5 नाल वंड होण वाली संख्या, सो कितनियां होणगियां 18। सो फेवरेबल हो गया अपना 18,
तो टोटल हो गए 90, 18 के टेबल च 90 आंदा 5 ते, सो 1/5 इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अगे आंदा अपने को 19th क्वेश्चन, एक पासा है उसके उत्ते जिहड़े फलक ने इस उन्होंने उत्ते संख्यावां की जगह पर आहा लैटर्स प्रिंट ने, तो आप संभावना पता करनी है कि जो इनू सुट्टीए पासे नूं तो अपने को ए प्राप्त होवे, तो वो देखते हैं ए प्राप्त होवे। फस्ट पार्ट है जिहड़ा वो किवें कैलकुलेट करांगे आपां। ओके इस दे विच फेवरेबल आउटकम्स देखो ए कितनी बार प्रिंट है, एक तो एक 2 बार प्रिंट है, सो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2, तो टोटल कितने ने 1 2 3 4 5 6, सो 2/6 कटिंग करके आ जाएगा अपने को 1/3। सो ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं कि इन्होंने उत्ते यही प्रिंट होणगे, इन्हों बदलिया भी जा सकता है, जिवें इहदे विच ए रिपीट किया है वो किसी होर लैटर नूं भी रिपीट कर सकते हैं, सो उस केस च ध्यान रखियो। सैकेंड है अपने कोल डी प्राप्त होवे, डी पता करने की संभावना, सो डी प्राप्त होवे, डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, सो 1/6 यही अपने को आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। अगे आने आप 20th क्वेश्चन ते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, वैसे तो आप डिस्कस कर लेने। एक है अपने को आयताकार खेतर, उहदे विच एक सर्कल है, हाँ जी आयत की लंबाई तो चौड़ाई दी हुई ने 3 मीटर तो 2 मीटर। ओके फिर कहता ये पासा सुटते हैं तो पासा 1 मीटर व्यास वाले चक्कर के अंदर डिगेगा, इसकी की संभावना है। ओके 1 मीटर का दिता होया आपां व्यास, तो अपने को अर्ध व्यास हो जाएगा, व्यास है 1 मीटर तो अर्ध व्यास हो जाएगा 1/2 मीटर। ओके तो इस दे विच डिगेगा, इट मीनस आप एरिया की गल करांगे, सो प्रोबेबिलिटी आएगी अपने को एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके एरिया ऑफ सर्कल होंगे अपने को πr² ओवर एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ जी अगे वैल्यूज़ भरते हैं, पाई का पाई रखते हैं, आर की वैल्यू है अपने को हाफ, सो 1/2 × 1/2 आ जाएगा, ओवर L/B यानी कि 3 × 2। अगले स्टैप के 2 ते 2 भी नीचे लियावांगे तो अपने को बन जाएगा π/3 × 2 ये बन गया 6 इंटू 2 × 2 आ जाएगा नीचे, सो ये बन गया π/6 2 * 12 12 2 * 24। अपने को आ जाएगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी दी इस केस के। अगे देखते हैं आप एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन। 144 बॉल पेन ने, उन्होंने समूह 20 पेन खराब ने तो बाकी ठीक ने, टोटल दिते हुए ने आपां नूं 144, उन्हां चों खराब ने जेड़े वो ने 20 तो ठीक यानी कि गुड, तो इन्हां नूं बोलते हैं आपां डिफेक्टिव। ओके फिर किन्ने हो जाएंगे 124 ने जेड़े वो ठीक होणगे। तुसी वही पेन खरीदना चाहोगे जिहड़ा ठीक है ओबवियसली, परंतु खराब पेन तुसी खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन्हां पेनों विचों एक अचानक पेन बाहर कढ़ के तुहानूं दिंदा, इसकी की संभावना है कि तुसी वो पेन खरीदोगे। हाँ जी असीं वही पेन खरीदांगे जिहड़ा ठीक है, यानी आपां ठीक पेन की संभावना पता करनी है। पहले पार्ट दे विच प्रोबेबिलिटी वी विल परचेज, यानी असी पेन खरीदांगे, संभावना का फॉर्मूला लिख के खरीदांगे पेन जेकर वो 124 के विचों होएगा यानी ठीक होएगा, ओवर 144। हाँ जी यदि कटिंग करिए आपां 2 के टेबल से कर लेंगे 6 62, इत्थे 2 के टेबल 72, फिर 2 ते जाएगा ये 31, तो इतों मिलेगा 36, सो 31/36 इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। अगे है अपने कोल तुसी वो पेन नहीं खरीदोगे, यानी कि डिफेक्टिव पेन की संभावना पता करनी है। प्रोबेबिलिटी पी वी विल नॉट परचेज, यानी कि असी पेन नहीं खरीदांगे, यानी कि खराब पेन ने 20 ओवर टोटल 144। कटिंग 2 के टेबल च देखिए तो 10, इत्थे 72, फिर 2 के टेबल 5, फिर इत्थे 36, सो 5/36 इस तरह इसका आंसर बन जाएगा अपने कोल। स्टूडेंट्स हुण आने आपां क्वेश्चन नंबर 22 ते 2 पासे सुट्टे गए ने, एक पासे दे लई 1 2 3 4 5 6 आ संख्यावां ने इधर नूं लईआं ने, दूजे पासे लई संख्यावां इधर नूं लईआं ने। जदों 2 पासे इकट्ठे सुट्टे जांदे ने तां कुल परिणाम हुंदे ने अपने कोल 36
ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ परिणाम ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ 36 परिणाम ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋੜ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਹੋਏ 1 ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੀਗੇ 36, ਤਾਂ 1/36 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋੜ 3 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ 3 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम, बट ये टोटल तो है अपने को 36, यदि कटिंग करके अपने को आ जाएगा 1/18। अगे जेकर 4 की गल करिए, 4 कितों कितों मिलता है अपने को, आ देख सकते हैं आप 1 3 2 2 या फिर 3 1, किन्ने हो गए 3। सो 4 के लिए अपने को 3/36 कटिंग करके अपने को आ जाएगा 1/12। 5 की जोड़ 5 की गल करिए तो 4 1 3 2 2 3 1 4, ये सारे दे सारे आ वाली लाइन आ जाएगी 1 2 3 4। सो 4/36 कटिंग करके 1/9 आ जाएगा। अगे 6 की गल करिए, 6 के केस दे विच आ सारी लाइन चलेगी अपने कोल, आ लाइन तुसी देख सकते हो। सो 1 2 3 4 5। सो 6 के लिए 5/36 यदि कटिंग नहीं होनी। अगे 7 ਲਈ देख लेने आ, 7 ਲਈ आ लाइन चलेगी, आ सारे दे सारे केसिस ने, इन्हां दे विच जोड़ 7 बनेगा 1 2 3 4 5 6। सो 7 के लिए आ गया 6/36 कटिंग करके आ जाएगा अपने कोल 1/6 7 ਲਈ। अगे 8 की गल करिए जोड़, हाँ जी 8 जोड़ के लिए आ लाइन चलेगी अपने कोल, आ वाली। सो 1 2 3 4 5। सो इसका आ जाएगा 5/36। अगे 9 की गल करिए, 9 के लिए अपने को 1 2 3 4। सो ये 4/36 कटिंग करके 1/9 आ जाएगा। अगे 10 की गल करिए तो 10 के लिए आ 3 केस। सो 3/36 यानी कि 1/12। अगे 11 की गल करिए, 11 के लिए आ वाले 2। सो 2/36, 2/36 अपनी कटिंग करके 1/18 आ जाएगा। अगे 12 की गल करिए, जोड़ 12 की, तो अपने को इको ही केस होएगा। सो 1/36 अपने को बनेगा इसकी संभावना। फिर वो कहता है, इसका दूसरा पार्ट है, एक विद्यार्थी यह तर्क दिंदा है कि कुल परिणाम 11 ने इत्थे। हाँ जी, आप देख सकते हैं इन्हों गिण के वो कह रहा है 2 3 4 5 6, इन्हों गिणीए तो 11 परिणाम ने, तो हरेक की संभावना कहता 1/11 होगी। इस करके अगे पूछा गया कि तुसी इस तर्क नाल सहमत हो, तो कारण भी दसो। हाँ जी, कहता है हरेक की संभावना 1/11 होगी। आप देखा कि संभावना तो अलग अलग आ रही है, हरेक की सेम 1/11 तो नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है क्योंकि ये सारे जो परिणाम ने यह समसंभावी नहीं ने, यानी कि इक्वली लाइकली नहीं ने। सो वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद वट द स्टूडेंट इज सेइंग। सो नो, नहीं, क्योंकि जेड़े परिणाम ने वो समसंभावी नहीं है, बिकॉज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को 23rd क्वेश्चन, उस कहा जा रहा है कि हनीफ है कोई लड़का, वो 1 रुपए के सिक्के को उछालता है 3 बार, तो जेकर 3 बार हैड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए, यानी 3 बार चित या 3 बार पट, तो वह गेम में जित जाता है। बट जेकर इस तरह नहीं होंदा तो वह हार जाएगा। हनीफ दे हार जाने की संभावना पता करो। हाँ जी, पहला आप लिखते हैं इस लिए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होंदी है कि जो आप कोई एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो जो नतीजे होंगे उन्होंने इकट्ठे करके लिखना, उन्होंने सैंपल स्पेस बोलते हैं। पहला आप देख लें कि तीनों हैड वाला केस, अगली बार हैड 2 ले लें, 3 क्योंकि हैड 2 ने तो एक टेल आएगी। हाँ जी, हुण ये हो सकता है कि पहली बार हैड आया, दूजी बार हैड आया, तीजी बार टेल आई, या फिर पहली बार हैड, दूजी बार टेल, तीजी बार हैड, या पहली बार च टेल आ गई, बाकी 2 बार हैड आया। सो ये केस हो गया। उस तो बाद आप 2 हैड वाला केस हो गया, 3 हैड वाला भी हो गया। हुण आप हैड 1 करते हैं,
एक हैड ते अगली 2 बार टेल आया, या फिर टेल हैड टेल आया, या फिर आया पहली 2 बार टेल ते लास्ट बार हैड। हुण ये केस भी हो गया। हुण आपां हैड नूं कर दिंदे आ खत्म, अगली बार तीनों टेल वाला केस लिख लैंदे आ। सो इस केस दे विच सैंपल स्पेस तुसीं इस तरह लिखनी है कि पहला तीनों हैड वाला केस, फिर 2 हैड वाले केस लिख लैणे ने तीनों, बस टी की पोजीशन चेंज करनी है, फिर एक हैड वाले केस हैड की पोजीशन चेंज कर देनी है, फिर अगली बार तीनों टेल। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जेकर आ आएगा तो आ आएगा, इस केस दे विच हनीफ जितेगा, बाकी केसां च हारेगा। आपां उहदे हारन की संभावना पता करनी है। सो पी हनीफ हार जावेगा, यानी कि हनीफ विल लूज द गेम। हाँ जी, उस केस दे विच फेवरेबल आउटकम्स, हाँ जी, 2 नूं छड्ड के टोटल हुंदे ने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चों 2 छड्डने ने तां इहदा मतलब 6 बटे टोटल 8, कटिंग करांगे तां 3/4 इज द आंसर आपां नूं मिल जाएगा। हाँ जी, अगे 24वां क्वेश्चन है अपने कोल। एक पासे नूं 2 बार सुट्टिया जाता है, जिवें आपां पहलां भी गल कीती सी कि अपने कोल 36 आउटकम्स होणगे इस केस दे विच टोटल। तो उन्हें कहा कि 5 किसी भी वार नहीं आएगा, 5 ना आवे उसकी की संभावना होएगी। 5 अपने कोल किहड़े-किहड़े केसिस च आ सकदा सी? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 या 5-6। इस तो बिना होर जिहड़े केसिस दे विच अपने कोल 5 आंदा सी वो सी 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 या फिर 6-5। हाँ जी, ये टोटल केस ने जिन्हां च 5 आंदा है। हुण उन्हें कहा है कि 5 ना आवे, 36 दे विचों इन्हां नूं छड्ड दांगे। किन्ने ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 36 चों 11 कढ़ के अपने कोल आ जाएगा 25/36। ये बन जाएगा पहले पार्ट का आंसर। अगे तुसी लिख सकते हो पी दे नाल ब्रैकेट च 5 नहीं आएगा। दूजा पार्ट है 5 घट्टो घट एक बार आएगा। घट्टो घट एक बार आएगा यानी 2 बार भी आ सकता है वध तो वध। सो आही केस होणगे 11। सो इस केस दे विच फेवरेबल अपने कोल 11 बटे टोटल्स हैगे ने 36। ये आंसर बन जाएगा। अगे तुसीं वो पंजाबी दे विच या इंग्लिश च लिख लेना है जिसकी संभावना आपां पता करते पे हाँ। स्टूडेंट्स हुण आ रहा अपने कोल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन। हाँ जी, आपां नूं 2 तर्क दिते गए ने, किहड़ा सच है किहड़ा झूठ है, तो उस दे लई आपां रीजन भी दसना है। पहला है जेकर 2 सिक्किਆਂ नूं इक्को वार उछालिया जाता है, 2 इकट्ठे सिक्के सुट्टे जाते हैं तो आपां नूं पता है कि सैंपल स्पेस की बनेगी? हैड टेल, टेल हैड, हैड हैड या टेल टेल। आ अपने कोल पॉसीबल आउटकम्स होणगे। तो वह कहता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या 1 वार चित्त 1 पट ये हो सकते हैं। हाँ जी, 2 चित्त 2 पट तो 1 चित्त 1 पट की वो गल करता पाया। वो कहता है ये 3 ही अपने को टोटल आउटकम हो सकते हैं। हाँ जी, परिणामों तो आप इन्होंने 3 दे तीन तरह नाल वर्गीकृत कर सकते हाँ। तो कहता इन्हों चो हरेक की संभावना 1/3 होएगी, पर अपने कोल हरेक की संभावना 1/3 नहीं होएगी क्योंकि यह समसंभावी नहीं ने। सो ये बारे लिख सकते हैं नहीं क्योंकि यह समसंभावी नहीं हन। नो बिकॉज outcomes are not equally likely। आप देख भी सकते हैं हैड टेल की संभावना इत्थे ते इत्थे अपने कोल बन गए 2 बटे 1 2 3 4। सो कटिंग करके आई 1/2। जेकर उन्होंने गल करिए 2 हैड की संभावना आ रही है अपने कोल 1/4 ते 2 टेल की संभावना भी आ रही है अपने कोल 1/4। सो यह तीनों की संभावना सेम तो नहीं, सो ये समसंभावी नहीं। वही आप ये बारे लिखा है। यदा अगला पार्ट देखते हैं। जेकर पासे नूं सुट्टिया जाता है तो उसके संभावित परिणाम एक टांग संख्या एक जिस्त संख्या है। तो टांग संख्या पता करने की संभावना 1/2 है। हाँ जी, जो आप पासा सुटते हैं पासे के उत्ते संख्यावां होंदियां 1 2 3 4 5 6। इन्हां चों 3 ने जड़ियां वो टांक है। किहड़ियां किहड़ियां? 1 3 5 ते 3 ही ने जिस्त
तो वो किहड़ियां ने 2 4 6 तो बिल्कुल 3 इंच ने 3 इंच ने तो होर तरह का अपने को कोई रिजल्ट ही नहीं पॉसीबल। इसका मतलब ये समसंभावी होणगे। तो टांक की अगे उन्हें संभावना पूछी है तो वह बनेगी 3/6 करके 1/2। सो इसका आंसर आ जाएगा यस, यानी कि हाँ, क्योंकि इस दे केस दे विच टांक ते जिस्त संख्यावां दोनों ही समसंभावी यानी इक्वली लाइकली ईवेंट्स ने। सो स्टूडेंट्स, मैंने उम्मीद है जो अज आप 14 चैप्टर की रिविजन की है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने कमेंट सैक्शन के जाके पूछ सकते हो। तो वीडियो चंगी लगी हो तो इसको लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स के नाल शेयर करो तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए तुहाडा धन्यवाद।